नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? तो देखेंगे आज तक आप सीखे हैं ना वर्णमाला, वर्णमाला के प्रकार, मात्राएं सभी सीखे हैं ना। आज मैं आपको व्यंजन की मात्राओं के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हम स्वर की मात्राएं जो सीखे हैं ना, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और वैसे ही अनुस्वर विसर्ग भी हम सीखे हैं। आज चलेंगे हम आज व्यंजन की मात्राओं के बारे में सीखेंगे। ये तो क्या है, व्यंजन की मात्रा क्या है, कैसे लिखते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, व्यंजन की मात्रा, व्यंजन की मात्राएं तो सारे बहुत सारे लिखते हैं ना, इसलिए हम व्यंजन की मात्राएं कहते हैं। मात्रा मीन्स एक है, मात्राएं मीन्स बहुत है। ओके, तो कैसे लिखते हैं तो पता है, पहले हम व्यंजन की वर्णों के बारे में सीखना है। व्यंजन, तो व्यंजन के वर्ण क्या क्या आते हैं, व्यंजन के वर्ण एक बार फिर से याद कर लेंगे। क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इन्हें ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। वैसे ही या, रा, ला, वा, स, श, सा, हा, श, त्र, ज्ञ, स्र। ये सभी भी हम क्या है, का से लेकर का टू स्र, का से लेकर श तक हम व्यंजन कहते हैं। ओके, तो मैं ये भी बताई थी, ये क्या है। సో ఇది కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ 4 లెటర్స్ ని మనం ఏమంటాము. సో ఈ 4 లెటర్స్ కా నుంచి రా వరకు వ్యంజన్ లెటర్స్ అంటాము అని చెప్పాను కదా, అంటే తెలుగులో హల్లు అంటాం. బట్ ఈ 4 లెటర్స్ ని అంటే వ్యంజన్లోనే ఈ 4 లెటర్స్ ని ఏమంటారని చెప్పాను నేను, సంయుక్తాక్షర్. क्या कहते हैं? సంయుక్తాక్షర్ कहते हैं. అవునా కదా? అంటే 2 వ్యంజన్ లెటర్స్ మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ లెటర్స్ అనేవి వచ్చాయని చెప్పాను కదా. సో వీటిని సంయుక్తాక్షరం అంటాము. బట్ ఇవి వ్యంజన్లో ఉంటాయి కాబట్టి వ్యంజన్ లెటర్స్తో పాటు కలిపి. ఓకేవా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం కమ్ టు ది పాయింట్. సో వ్యంజన్ కి మాత్రమే అంటే తెలుగులో ఏమంటాము, ఒత్తులు, గుణితపు గుర్తుల్ని ఏమన్నాము, స్వర్కి మాత్రాయే అన్నాము. గుణితపు గుర్తులు ఉన్నాయి కదా, తెలుగులో అయితే ఏమంటారు, గుణితపు గుర్తులు ఉన్నాయి కదా, వాటిని హిందీలో ఏమని పలికాం మనం, स्वर की मात्राएं कहे. और वैसे ही इन तेलुगु वत्तुलु, वत्तुलु अंटाम कदा, तो जब वे हिंदी में कहते हैं व्यंजन की मात्राएं, व्यंजन की मात्राएं. सो ऐसे ट्रांसलेट చేయాలంటే व्यंजन हल्लुల యొక్క గుర్తులు, हल्लुల యొక్క గుర్తులు. ओके, व्यंजन की मात्राएं. तो ये कैसे लिखना है, हम कैसे पढ़ना है सीखेंगे. ओके, चलो पहले से पहले हम व्यंजन वर्ण एक बार फिर से लिखेंगे, जब हमको पता चलेगा कैसे लिखना. ओके, सो ఒకసారి మనం కా నుంచి హా లెటర్స్ రాసుకుందాం. సో దెన్ వి విల్ లెర్న్ హౌ టు మేక్ వ్యంజన్ की मात्राएं ఎలా రాయొచ్చో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, దెన్ క, ఖ, గ, ఘ, च, छ, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स,
సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను ప్రొనౌన్सिएशन కూడా చేశాను. సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో हम यहाँ का से लेकर हा तक लिखे हैं. సో కా నుంచి హా వరకు రాశాను కదా. దెన్ కమ్ టు ద పాయింట్. మరి వీటికి హల్లుల యొక్క గుర్తులు, దట్ మీన్స్ వ్యంజనకి మాత్రాయే ఎలా రాయొచ్చు. ఓకే, సో మనం ఈజీగా చెప్పుకోవాలన్నా, ఈజీగా నేర్చుకోవాలన్నా, సో మీరు ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అంటే హాఫ్ లెటర్స్. ఓకేనా, హాఫ్ లెటర్స్ అని నేర్చుకున్నాం. అట్లయితే మనకి ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి. అలాగే ఈజీగా కూడా మనం చదువుకోవచ్చు. సో हाफ लेटर कहने से तो आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं. ओके माँ, चलेंगे. तो यहाँ देखिए हर एक अक्षर को स्ट्राइट लाइन होता है. स्ट्राइट लाइन मीन्स स्टैंडिंग लाइन्स. ప్రతి ఒక్క లెటర్కి ప్రతి ఒక్క లెటర్లో కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఉంది. ఉందా లేదా చూడండి. సో వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ ना, so every letter have one straight lines. So straight line, so इसी को स्ट्राइट लाइन नहीं कहते, इसी को कहते हैं. तो देखिए इसे स्ट्राइट लाइन. तो पा में है, ला में ही, वा है, सा में ही, शा में है, सा में है और हा में नहीं है. तो ये मैं बाद में बताऊंगी. సో హాలో లేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, అంటే నేను లెటర్స్ మిస్ చేసిన లెటర్స్ ఏంటి వీటిల్లో? మిస్ చేసిన లెటర్స్ ఏంటి రాద్దాం ఒకసారి. సి హియర్ ట, ठ, ड, ध. ओके, मैं नीचे लिखती हूँ. ट, ठ, ड, ध, द. ओके, ये लेटर्स को तो इसी के साथ हा को भी स्ट्राइट लाइन नहीं है. स्ट्राइट लाइन లేదు కదా. సో వీటి గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్న లెటర్స్ గురించి చెప్తాను ఎలా రాయాలి. ఓకేమా, చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా. సో హాఫ్ లెటర్ దట్ మీన్స్ వ్యంజన్కి మాత్రమే యా హల్లుల యొక్క గుర్తు రాయాలి అంటే ఎలా రాయాలంటే వెరీ ఈజీ, చాలా డెడ్ ఈజీ. సో తెలుగులో లాగా మనం కా కావద్దు, గా కావద్దు అన్న కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అవి కూడా ఈజీయే, బట్ అవి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా సింపుల్. లుక్ ఎట్ దిస్ వర్డ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ ని తీసేస్తే సో ఆటోమేటిక్లీ we will get half letter. See here, how can we write half ka? half ka. वैसे ही का की मात्रा क्या कहते हैं? का की मात्रा कहते हैं. वैसे ही हाफ लेटर ఈజీగా చదువుకోవడానికి हाफ लेटर ని పలుకుతాం. ओके, एंड देन सो इसी को स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे. तो निकाल देने से ऐसे लिखते हैं. देखिए कैसे लिखी थी मैं ना. तो स्ट्राइट लाइन निकाल देने से हाफ ख. ऐसे ही ख की मात्रा, ख की मात्रा. तो जब ये देखेंगे ये क्या है? ग. ये क्या है? ग. तो इसी को स्ट्राइट लाइन, ये तो स्ट्राइट लाइन है ना, ये स्ट्राइट लाइन है ना, इसी को निकाल देंगे. सो निकाल दिए तो क्या बनता है? गा की मात्रा. गा की मात्रा. इजीली वी लर्न हाफ ग, हाफ ग. तब जब ये देखेंगे इसी को भी स्ट्राइट लाइन है, तो ये स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो घ. और यहाँ पे शिरोरेखा मत देना है, अगर दिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो ఇక్కడ శిరోరేఖ అనేది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వలేకపోవచ్చు. బట్ मैक्सिमम लेटर्स की इव्वరు. हाफ लेटर्स రాసేటప్పుడు శిరోరేఖ అనేది ఇవ్వరు. ओके, दैट इज नो नीड. एंड देन सो देखेंगे घा. घा पर हम स्ट्राइट लाइन निकाल दिए हैं. निकाल दिए तो बन जाता है घ, हाफ घ. अदरवाइज घ की मात्रा, घ की मात्रा. और ये देखेंगे ये क्या है? च. ये कौन सा वर्ण है? च. तो इसी को हम यही स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे. ओके, तो स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो ऐसे लिख सकते हैं च. च हाफ च कहते हैं और च की मात्रा भी कह सकते हैं. च कह सकते हैं और च की मात्रा भी कह सकते हैं. और वैसे ही ये देखिए एक बार मैं फिर से लिखूंगी. ये है छ, छ, बड़ी छ.
ओके, तो हम इसी को ये स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे। तो देखिए छ, छ की मात्रा कहते हैं और वैसे ही हम छ कहते हैं। और ये तो देखेंगे ये क्या है, जा, ये कौन सा वर्ण है, जा। ओके, और इसके नीचे अगर नुक्त लगा दिए तो ऑलरेडी आई टोल्ड इसी का सिंबल लगा दिए तो ऐसे कि डॉट लगा दिए तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जा। ओके, तो वैसे ही अब हम यहाँ पे नुक्त निकाल लेंगे तीसरे से। ओके, तीसरे से सो द नेला राइट्स वन विल हाफ मीटर, सो स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो जा, स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो बन जाता है हाफ जा, अदरवाइज जा की मात्रा, जा की मात्रा। और वैसे ही यहाँ पे देखिए बड़ी झा, ओके, बड़ी झा। तो इसी को हाफ लेटर लिखना, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसी का स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे तो बन जाता है हाफ छा, अदरवाइज झा की मात्रा, अदरवाइज क्या कहते हैं, झा की मात्रा। एंड देन ये देखेंगे ये कौन सा वर्ण है या अक्षर, वर्ण भी कह सकते हैं वैसे ही अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण అని చెప్పొచ్చు లేదా అక్షర అయినా కలపొచ్చు అన్నమాట లెటర్స్ ని। ఓకే, ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, अण, कौन सा वर्ण है, अण। तो इसी को हम हाफ लेटर लिखने से कैसे लिख सकते हैं, यस, इसी को स्ट्राइट लाइन निकाल देने से हाफ अणा बन जाता है। लुक लाइक इंग्लिश लेटर्स अल्फाबेट्स यू बन जाता है। तो अणा को हाफ लेटर लिखने से ओके हाफ अणा बन जाता है। वैसे ही अणा की मात्रा कह सकते हैं। और वैसे ही ये तो है त, छोटी त है ना, तो इसी को ये स्ट्राइट लाइन है ना, स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो ये बनता है हाफ त। तो वैसे ही हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, ताकि मात्रा, इजीली हाफ त। ओके, और ये देखेंगे ये तो छोटी ता है और ये क्या होता है, बड़ी था। तो इसी को हम स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे। तो स्ट्राइट लाइन निकाल देना तीसरे से तो बन जाता है అది ఎలా రాయొచ్చు మనం ఇలా రాయొచ్చు। ओके, हाफ था कहते हैं, वैसे ही था की मात्रा भी कह सकते हैं, था की मात्रा भी कह सकते हैं। और ये कौन सा वर्ण है, धा, बड़ी धा। सो इसी को हम यही स्ट्राइट लाइन है ना निकाल देंगे तो बनता है हाफ था। इसी को कहते हैं धा की मात्रा। और वैसे ही यही बताइए एक कौन सा वर्ण है, ना। सो ना को भी स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो हाफ ना की मात्रा। और ये है पा। सो पा को स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो बनता है हाफ प। वैसे ही पा की मात्रा। और वे भी है, देखिए एक बात ध्यान से देखिए। सो लुक एट दिस केयरफुली। तो इसी को हम ये निकाल दिए तो कोई अक्षर नहीं आता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करना है, कैसे हाफ करना है मीन्स देखिए। तो इसका स्ट्राइट लाइन ये है ना, इसका स्ट्राइट लाइन निकाल देना है। ओके, तो इसका स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो हमको हाफ फा, ओके, हाफ फा की मात्रा कहते हैं। और वे है, इसका वर्ण है, ये वर्ण है। ओके, कौन सा वर्ण है, एक कौन सा वर्ण है, बा। ओके, तो इसी को स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो वे बनता है हाफ बा की मात्रा। और वे है भा। ओके, इसका स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो बनता है हाफ भा। वैसे ही भा की मात्रा।
और ये है माँ, इसका स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो बनता है हाफ माँ, वैसे ही माँ की मात्रा। ये तो देखने के लिए एक ही होते हैं, सो देखने के लिए చూడడానికి రెండు ఒకేలా కనిపిస్తాయి, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस చిన్న తేడా ఉంటుంది। वो क्या है तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर एक छोटा सा सर्किल दिया जाता है, यहाँ पर माँ पर कोई सर्किल नहीं देते हैं। ओके एंड देन ये है या, सो यहाँ पर हम सॉरी स्ट्राइट लाइन निकाल दिए तो बनता है या, हाफ या, वैसे ही या की मात्रा कहते हैं। और रा में बातें बताऊंगी, रा में बाद में बताऊंगी। एंड नेक्स्ट ये देखेंगे ला, सो ला पर ही स्ट्राइट लाइन है ना, ला की पूरा स्ट्राइट लाइन नहीं करा, सो स्ट्राइट लाइन निकाल देंगे तो बनता है हाफ ला, वैसे ही ला की मात्रा। और वे है वा, तो वा, सो देखेंगे यहाँ पर हम बा लिखे हैं ना, सो यहाँ पर हमें बा लिखे हैं, सो बा में तो मिडिल एक लाइन दिए हैं ना, तो जब वो होता है बा होता है, लेकिन हमें सर्किल लेते हैं, लेकिन सर्किल के अंदर, सो इनसाइड ऑफ सर्किल वी नॉट गिविंग एनी लाइन, सो दैट वी कॉल दैट लेटर वा। तो स्ट्राइट लाइन, वी विल रिमूव द स्ट्राइट लाइन, देन वी गेट हाफ लेटर, हाफ वा, वैसे ही वा की मात्रा। अब ये है सा, सा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सा कहते हैं। तो सा को हाफ लेटर लेने से ऐसे लिखते हैं, और सा की मात्रा भी कह सकते हैं। तो ये है शा, तो शा देखेंगे यहाँ पे शा है, यहाँ पे पा है, तो देखिए देखने के लिए दो भी एक ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस। तो यहाँ पे पा के अंदर कोई भी रेखा नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ तो अंदर हम एक छोटी सी रेखा खींचे हैं, तो इसीलिए वे बनता है शा। सो ఇక్కడ మిడిల్ లో మనం ఎటువంటి లైన్ గీయలేదు, సో ఆ లెటర్ ఎలా పలికాం మనం పా, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మిడిల్ లో పా రాసి దీని మిడిల్ లో లైన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ లెటర్ ఎలా మారింది షా। ओके सो देन वी विल मेक दिस हाफ लेटर, सो हाफ लेटर लिखना है, कैसे लिखना है, इसी को स्ट्राइट लाइन है ना वो निकाल देना चाहिए, स्ट्राइट लाइन है ना, सो निकाल दिए तो बन जाता है हाफ शा। ओके और ये है सा, तो सा ये तो स्ट्राइट लाइन है ना, निकाल देंगे तो हाफ सा। और यहाँ तक हम हाफ लेटर सीखे हैं, सो ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా, స్ట్రైట్ లైన్ తీసేస్తే రాసేటువంటి హాఫ్ లెటర్స్ మీన్స్ వ్యంజనకి మాత్రమే। ఓకే సో హాఫ్ లెటర్స్గా చేంజ్ చేయడం వచ్చింది కదా నాన్న, అండ్ దెన్ వీటికి స్టార్టింగ్ లైన్ లేని లెటర్స్, స్ట్రైట్ లైన్ లేనటువంటి లెటర్స్, అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు మేడం ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కదా, ఇవన్నీ స్ట్రైట్ లైనే కదా అని మీరు అనొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టుకి పండు ఉందనుకోండి, ఓకే సో పండుకి దానికి ఉండేటువంటి చిన్న ఉంటుంది కదా కొమ్మ, దానికి కొమ్మ అంటామా లేదా పండుకునేటువంటి ఆ చిన్న అంటే దాన్ని అంటు పెట్టుకునేటువంటి కొమ్మ అంటామా చెప్పండి, కాదు కదా। సో ఒక ఫ్రూట్ చెట్టుకి వేలాడే విధంగా ఉంటుందన్నమాట, సో బాగా పండిందనుకోండి అది రాలిపోతుంది, సో దాంతోపాటు ఇది రాదు కదా, దాంతోపాటు దానికి లింక్ అయినటువంటి ఆ చిన్న కొమ్మ లాంటిది రాదు కదా, పండు ఊడి కింద పడిపోతుంది, ఎస్ సో దాన్ని కొమ్మానం కదా లైక్ దస్। అలాగే దీన్ని కూడా ఏమంటే స్ట్రైట్ లైన్ అని కూడా అనమాట। ఓకే సో పండు ఏ విధంగా అయితే పండు కింద పడిపోతుందో, సో దానికి సపోర్టింగ్ అనమాట, అంటే దానికి సపోర్టింగ్ ఒక లెటర్ షేప్ రావడానికి మాత్రమే మనం రాస్తాం, వాళ్ళ లెటర్ షేప్ వచ్చి దాన్ని ఈజీగా మనం చదవడానికి ఈజీగా ఉండే విధంగా అందుకే రాస్తాం అనమాట, ఓకేనా। అండ్ దెన్ బట్ వీటికి స్ట్రైట్ లైన్ లేవు కదా, మరి స్ట్రైట్ లైన్ లేనప్పుడు హాఫ్ లెటర్స్ ఎలా రాయొచ్చు, అది ఇంకా ఈజీనా, ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ తీసేస్తే హాఫ్ లెటర్ వస్తుంది, बट ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ లేదు కదా మరి ఎలా రాయొచ్చు అంటే వెరీ ఈజీ సో లుక్ ఎట్ దిस सो यहाँ है ना तो सेम वैसे ही लिख देंगे सेम अलग रासेद्दाम और नीचे ये हलंत चिन्ह दे देंगे
సేమ్ అదే లెటర్ రాసేసి దాని కింద హలంత చిహ్నగా ఇచ్చామంటే అదేమైపోతుంది హాఫ్ లెటర్. तो ध्यान से देखिए చూడండి జాగ్రత్తగా ఈ హలంత చిహ్న ఏ లెటర్ కింద అయితే ఉంటుందో ఆ లెటర్ ని మనం హాఫ్ లెటర్ అని అంటాం. ఓకే ఈ హలంత డాట్ ఏ లెటర్ కింద అయితే ఉంటుందో ఆ లెటర్ ని మనం हाफ लेटर अभी ओके एंड वैसे ही देखिए ताकि ताकि नीचे हलंत डॉट था के नीचे हलंत डॉट और दा वैसे लिख सकते हैं हलंत डॉट और धा के नीचे हलंत डॉट और धा के नीचे हलंत डॉट. ओके ये तो छह छह मीन्स 6 है. ये 6 लेटर ये 6 लेटर को they have no straight lines. So how we make the half letters? So when we give halant chihna it will be made half letter. Okay, so understood nada? And then so what about dra? What about dra? इसी को हम कैसे लिख सकते हैं देखिए. तो ऐसी सिंबल है और ऐसी सिंबल भी लिख सकते हैं. ऐसे सिंबल भी लिख सकते हैं और ये 3 सिंबल कैसे कहाँ लिख सकते हैं किस अक्षर को देना है. ये तो 3 हम सीखना है कैसे लिखना है और किस अक्षर को ऊपर देना है और किस अक्षर को नीचे देना है. ओके देखेंगे. देखिए यहाँ पर ये है प्लस तो यहाँ पर हम सिरो रेखा दिए सॉरी हलंत चिन्ह दिए हैं ना तो ये बन जाता है इसका नकारा जो शब्द आता है ओके. तो इसी को हम रा की मात्रा जोड़ना है. रा की मात्रा जोड़ने से जब ये रा की मात्रा का के नीचे देना है का के नीचे देना है तो का की लेटर की कितनी बार ओके का के नीचे देना है. वैसे ही च प्लस रा तो च ओके तो पहला अक्षर यही प्रोनाउंस करते हैं पहले अक्षर यही कहते हैं बाद में ए रा की मात्रा जोड़ते हैं. और वैसे ही प्लस रा तो बनता है त्र. वैसे ही द प्लस रा द्र. सो अक्षर को नीचे देना है. ता और तो यही सिंबल नीचे देना है. यही सिंबल तो अक्षर के नीचे देना है. और ए कैसे देना है तो ऊपर का है ना और कैसे देना है देखेंगे वही भी देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ तो पहला व्यंजन आया है पहला तो अक्षर आया है बाद में रा आया है. तो यहाँ पे हम रा की मात्रा दे रहे हैं तो पहले अक्षर को नीचे देना है. लेकिन यहाँ पे रा आया है पहले में रा आया है तो बाद में हम अक्षर को लिखेंगे अक्षर को वर्ण को लिखेंगे जब यहाँ पे पहले रा आने से और उसके सामने जो अक्षर होता है सो रा राసిన తర్వాత దానికి ముందు ఏ లెటర్ అయితే ఉంటుందో సో అంటే రా ప్లస్ గా కానివ్వండి రా ప్లస్ చా కానివ్వండి రా ప్లస్ జా కానివ్వండి అంటే రా తర్వాత ఏ లెటర్ అయితే వస్తుందో దానికి పైన ఇవ్వాలి. ओके दाనికి పైన ఇవ్వాలి. एंड देन वैसे ही देखिए रा प्लस मा तो रुम तो पहला रा का प्रोनाउंस करना चाहिए. पहला तो रा का प्रोनाउंस करना चाहिए बाद में मा का प्रोनाउंस करना चाहिए रुम. ओके रुम. और वैसे ही रा प्लस सा तो ये है तो पहले तो रा अक्षर आया है बाद में सा आया है. जब हम ये मात्रा हम सामने जो अक्षर होता है ना इसके सर पे देना है. सर पे मीन्स फाइन. ओके तो रा का प्रोनाउंसिएशन पहला करना है बाद सा कहना है. ओके यहाँ पे देखिए पहला तो अक्षर है बाद मात्रा देना चाहिए तो उसी कहते हैं त्र त्र. सो पहला तो अक्षर का प्रोनाउंस करते हैं बाद मात्रा का प्रोनाउंस करते हैं. ఇక్కడ ఫస్ట్ దా ప్లస్ రా అన్నప్పుడు ఇక్కడ లెటర్ ని ఫస్ట్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం తర్వాత మాత్ర ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఓకే సో హియర్ ఆల్సో చ ప్లస్ రా
च, ओके, का प्लस र क्र। ओके, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल, प्लस रा प्लस ना न, ओके। तो वैसे ही तो एक ही सिंबल नीचे देना है, अक्षर को नीचे, और एक ही सिंबल ऊपर देना है, और एक कैसे देना है, और एक कैसे देना है देखेंगे। यहाँ मैं आपको बताई थी। तो विदाउट स्ट्राइक लाइन्स, दे हैव नो स्ट्राइक लाइन्स टू दैट लेटर्स, दे हैव नो स्ट्राइक लाइन्स। तो स्ट्राइक लाइन्स नहीं है ना, तो वही अक्षर को देखेंगे यहाँ, वही अक्षर को हम ऐसे देना चाहिए, वही अक्षर को हम ऐसे देना चाहिए। ओके बच्चों, आपको तो व्यंजन की मात्राएं समझ में आ गया ना, तो ठीक से सीखना है और ध्यान में रखना है। ओके, धन्यवाद।